So continuing with states of matter, I'll be solving some more numericals on ideal gas equation. And of course, Avogadro's law भी हम इसमें include करेंगे. Though this law I have included earlier, but I'll be mentioning it specifically over here. कि वो क्या था, just for a revision sake, we have used this in our previous numerical. Okay, so one thing more. So I'll be solving numericals in ideal gas equation as I told, but I have, in this particular video, taken up one or two numericals on Boyle's law as well as Charles' law. So I found these two, three numericals very interesting ones, a little tricky one. So I have included them in this video. So you need to go through the whole video to understand those specific numericals on Boyle's law as well as Charles' law. Okay, so along with ideal gas equation, of course मैंने दो numericals उन पे भी कराए हैं, Boyle's and Charles' law पे. Right, now coming to what is Avogadro's law. You know that Avogadro stated that 1 mole of any gas at STP or NTP contains, the volume of 1 mole of any gas at STP or NTP is equal to what? 22.4 liter. That is what is known as Avogadro's law, जो मैंने पहले भी यूज किया है अपने previous numericals में, if you remember. Okay, so what is this law? I had used it in my previous numerical, that volume of 1 mole of any gas at STP or NTP is the same thing, is equal to how much? 22.4 liter. This is what Avogadro found. So this I have already used. So if I use it in any of the numericals, that you know that. Okay. Plus Avogadro, he also stated that 1 mole of a gas contains how many particles? 6.023 into 10 raised to power 23 particles. Those particles may be atoms or may be molecules, depending upon gas आपकी molecular form में exist करती है या आपकी atomic form में exist करती है, right? So 1 mole of not only a gas, of actually any substance. Now the thing is here, because we are talking about specifically gases, so that's why I am, I have mentioned 1 mole of a gas. So this thing also I'll be using a mole concept ka part hai, I'll be using in my coming numericals. And ideal gas equation, of course, PV is equal to nRT, or P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, right? So ideal gas equation की ये वाली form हम इस बार use करेंगे अपने numericals में. ये भी of course use करेंगे P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, that we used in our previous numericals in our previous video. But this time I'll be taking up numericals on this because इसमें again moles की बात आ रही है. So तभी मैंने Avogadro law को specifically mention किया है, because इसके अंदर हम number of moles से related numericals करने वाले हैं in this video. So please go through the whole video and understand the concept. This whole video will give you a lot of clarity on not only on these particular topics like I have mentioned, but on mole concept also. ठीक है, because मैं use करने वाली हूँ वो. चलिए, let us start with the first numerical, which is very very basic and very simple. ठीक है, so it is how much time would it take to distribute one Avogadro number of wheat grains if 10 raised to power 10 grains are distributed each second. So what are Avogadro number of wheat grains? What is Avogadro number? Everyone knows that Avogadro number is what? 6.023
into 10 raised to power 23. So they are saying if 10 raised to power 10 grains are distributed in 1 second, so how much time will the above number of grains take? Are distributed in 1 second. So how much time will 6.023 into 10 raised to power 3 grains को लगेगा distribute होने में? So this is a very basic numerical, but I just took up here ताकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की बात कर सकूं. So that's why I have taken up this numerical, right? So the answer is equal to 6.023 into 10 raised to power 13 seconds. So इतने seconds लगेंगे इतने सारे grains, wheat grains को distribute करने में. ठीक है, ओके. इसको अगर आपको आंसर ईयर्स में मांगा हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स ईयर्स में. इसको पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिए. ओके, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करो इसको. सो आई कैन राइट अप, मैं सारा एक साथ लिख रही हूँ इसको. सो दिस विल बी फॉर मिनट डिवाइड बाय 60. देन फॉर आवर्स फिर आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे इसको हम डिवाइड करेंगे डे 3600 से, फिर इसको करेंगे 24 से, एंड फिर इसको करेंगे ईयर्स के लिए 365 से. तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 1.9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ तक भी करेंगे तो इट्स ऑल राइट. बट इफ दे आस्क यू to convert it into I mean answer, give the answer in years, तो आपको पहले seconds को minutes में, फिर minutes को hours में, and hours को days में, and days को आपको days में convert करने के बाद आपको answer देना है, which will be this value, right? So this is a very simple numerical. So let's move on to next numerical. 10 grams of oxygen are introduced into an evacuated vessel of 5 decimeter cube capacity maintained at 26 degree Celsius. Calculate the pressure. R is given to be 0.83 bar decimeter cube mole inverse Kelvin inverse. Okay, so what do they say? They say that 10 grams of oxygen are introduced into an evacuated vessel. एक कोई vessel खाली किया उसमें 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया, पुट कर दिया हमने. ठीक है, एंड वेसल की वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब, and the temperature of the vessel is 26 degree Celsius, which is equal to 273 plus 26, this is equal to 299 Kelvin. What are they asking? Calculate the pressure निकालने को बोला है. R हमें given है 0.083 bar decimeter cube mole inverse this thing Kelvin inverse, right? So simple. यूज आइडियल गैस इक्वेशन इन दिस. आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी बिकॉज हमें इसमें सब कुछ तो गिवन है. कैसे? आई टेल यू. सी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट? नाउ पी वी हैव टू कैलकुलेट. वी इज गिवन which is what? Which is 5 decimeter cube. Temperature is given 299 Kelvin. R is given. हमें n निकालना पड़ेगा. ठीक है, हमें इसके लिए n निकालना. दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विच गैस वी आर टॉकिंग अबाउट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, सो विच इज 10 अपॉन 32. 10 upon 32. So that is n. So बस सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and calculate the value of P, right? So PV, if PV is equal to nRT, this implies P is equal to nRT upon V. Now n हमने अभी निकाला 10 upon 32. मैं इसको ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. अभी कैंसिल करूंगी इसको, इसको सॉल्व करूंगी. 0.083 R की वैल्यू है. टेम्परेचर वॉज 299, वॉल्यूम इज 5. अब इन न्यूमेरिकल्स में अगेन आपको आर क्या लेना है? इसमें तो गिवन है आपको आर,
But if R is not given, the value of the gas constant R has to be taken depending upon the temperature and the especially the volume thing. आपको देखना है कि आपका वॉल्यूम कौन से यूनिट्स में है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आर की वैल्यू लेनी होती है. ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. दिस इज 10/32 इंटू 0.83 इंटू 299/5. सो 2/16 ये कट गया. सो ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 0.083 इंटू 299/16. दिस विल कम आउट टू बी 1.55 बार. प्रेशर बार में क्यों आया है? बिकॉज जो आर की वैल्यू थी दैट इज इन बार है ना. देखो प्रेशर बार में वॉल्यूम, ये देखो आर की वैल्यू डेसीमीटर क्यूब इंक्लूड हुआ है ना आर की वैल्यू में. सो हम क्योंकि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, सो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू जो आएगी वो आई मीन यूनिट जो आएंगे वो बार में आएंगे. ठीक है, चलिए let's move on to the next numerical. So the next numerical is the density of liquid carbon dioxide at room temperature is 0.8 gram per centimeter cube. Okay, how large a cartridge of liquid carbon dioxide must be provided to inflate a life jacket of 4 liters capacity at STP? So मैं आपको बेसिक में वे में एक न्यूमेरिकल समझा देती हूँ कि ये क्या चाह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि एक हमें कार्ट्रिज, इसको मैं एक डायग्राम की फॉर्म में समझा देती हूँ आपको. सो सपोज दिस इज अ कार्ट्रिज, जैसे इंक के कार्ट्रिजेस होते हैं ना, ठीक है, इंक रिफिल्स जो होते हैं. सो कार्ट्रिज है, ठीक है. इसमें क्या है, हमें एक कार्ट्रिज लेना है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का. इस कार्ट्रिज में से हमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड किस में फिल करनी है? एक लाइफ जैकेट में फिल करनी है. ठीक है, सो मैं एक रफ सा डायग्राम बना देती हूँ. सो एक लाइफ जैकेट है, हमें उसमें once again I will be making it. एक सेकेंड. ओके, सो दिस इज सपोज एक रफ सा डायग्राम बन गया. ये एक सपोज लाइफ जैकेट है. ठीक है, अब इस लाइफ जैकेट को इन्फ्लेट करना है, मतलब इसको लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरना है. बिकॉज लाइफ जैकेट को थोड़ा लाइट किया जाता है ना, लाइट वेट बनाया जाता है, तो उसके अंदर कोई हवा, कुछ एयर, जनरली हम जो लाइफ जैकेट्स देखते हैं उनमें एयर फिल होती है. ठीक है, आपने देखा भी होगा माउथ से एयर ब्लो कर रहे होते हैं. बट इसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल करनी है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से इसको इन्फ्लेट करना है. बेसिकली इसको फिल करना है, इसको इस कार्ट्रिज में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड लेके. अब इस जो कार्ट्रिज का हमें क्या गिवन है, इस कार्ट्रिज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड in this cartridge is 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये कह रहे हैं हाउ लार्ज अ कार्ट्रिज ऑफ लिक्विड CO2, मतलब इस कार्ट्रिज की हाउ लार्ज का मतलब वॉल्यूम निकालनी है. हाउ लार्ज द कार्ट्रिज हमें चाहिए होगा, दैट मीन्स इसकी हमें कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी इस कार्ट्रिज की, टू इन्फ्लेट अ लाइफ जैकेट जिसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर्स कैपेसिटी की लाइफ जैकेट है. ठीक है, तो एट STP पे हमें उसको फिल करना है. किस टेम्परेचर पे, किस कंडीशन पे फिल करना है? एट STP पे. तो ये बताओ कि इस कार्ट्रिज की कितनी वॉल्यूम होगी जो यूज होगी, मतलब होगी, जिससे कि एक लाइफ जैकेट फिल की जा सके 4 लीटर कैपेसिटी की एट STP. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो कैपेसिटी लाइफ जैकेट की होगी, ठीक है, ओके, हाउ लार्ज, यस, सो कैपेसिटी ऑफ द लाइफ जैकेट, हाँ, तो व्हाट आई वाज टेलिंग दैट कैपेसिटी ऑफ, ऑब्वियस ही बात है, ऑफ द लाइफ जैकेट विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड. जितनी इस कार्ट्रिज में कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी हमें, दैट विल बी इक्वल टू दी कैपेसिटी ऑफ लाइफ जैकेट. लाइफ जैकेट की खुद की कैपेसिटी कितनी है? 4 लीटर. सो इसका मतलब 4 लीटर के बराबर ही हमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम लगेगी. सो यहाँ से हमारे पास किसकी वॉल्यूम आ गई है? हमारे पास यहाँ से आ गई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 4 लीटर्स। ये तो हमें गिवन है ना, कैपेसिटी ऑफ लाइफ जैकेट हमें गिवन है 4 लीटर्स, ठीक है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आई टेल यू नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू nRT, so that is equal to mass of this, यहाँ पे जो मैंने ये लगाया ना, दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ से बेसिकली मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, कितना चाहिए हमें। सो इफ PV is equal to M upon capital MRT, that implies small m is equal to, I mean mass of this is equal to this upon RT. Now STP conditions है, STP है, so pressure is 180 m, temperature is 273 Kelvin, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है, 4 लीटर है, ठीक है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे इसकी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड। एंड व्हाट एल्स डू वी रिक्वायर, वी रिक्वायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज हाउ मच, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, दिस इज ऑफ CO2, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, प्रेशर 1, वॉल्यूम 4, 44, आर की वैल्यू क्या लेंगे इसमें हम, ATM में है ना प्रेशर, सो आर की वैल्यू विल बी 0.0821, सो 0.0821 into 273, this will give mass of carbon dioxide. So this value will come out to be approximately 7.86 आ जाएगी। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। हमें क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ कार्बन, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर दिया, ये सारी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। सो वी हैव मास ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव डेंसिटी ऑफ liquid carbon dioxide which is equal to 0.8 gram per centimeter cube, and we know mass upon volume is equal to density. This implies volume is equal to mass upon density. Now mass हमने कितना निकाला है, 7.86 upon 0.8, so this is equal to 9 point, ये आएगा 8, oops just a second, so this is equal to 9.82 centimeter cube. So that is the volume of the cartridge of liquid carbon dioxide that must be provided to inflate a life jacket of 4 liter capacity, ठीक है। सो ये हमारी आ गई the volume of the cartridge, I mean जो हमें मांगा है, that is this value comes out to be 9.82 centimeter cube, ठीक है। So this, I think numerical is quite clear to you. So next, let's move on to next numerical. Okay, so the next numerical says 150 ml of a gas at NTP were taken to 20 degrees Celsius and 0.96 bar pressure. What is the change in volume of the gas? So this is very simple. Obviously हमने क्या किया है, एक गैस थी initially 150 ml capacity थी, जिसकी वॉल्यूम थी, I mean जिसकी, एंड एट NTP यानी कि टेम्परेचर क्या था, ऑब्वियसली 273 Kelvin, pressure was 180 m, which was taken to how much temperature, 20 degrees Celsius. So 20 degrees Celsius is equal to 20 plus 273, that means 293 Kelvin पे लेके गए इसको, and pressure reduce कर दिया, that is 0.96 bar, because this is nearly equal to 1 bar. So हमने क्या निकाला, चेंज इन वॉल्यूम। ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, जो यहाँ पे V2 आएगा वो ज्यादा आएगा, वॉल्यूम विल बी मोर, V2 will be more than V1 because temperature is increased and pressure is reduced, right? And pressure is reduced. So हमें क्या निकालना है, change in volume. So change in volume will be what, V2 minus V1. So apply ideal gas equation, पहले V2 निकालो, ideal gas equation, using ideal gas equation, that is
P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. यहाँ से हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम 2 V2. So that is P1 V1 T2 upon P2 into T1. So इसमें सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. V2 is equal to P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, that is 1. V1 की वैल्यू है 150. T2 is 293. What is the value of P2? P2 is 0.96 bar. 0.96 bar. T1 is 273. So ये कैलकुलेशन पे आ जाएगा 167.69 ml. ठीक है. So now come calculate change in volume. So change in volume is equal to V2 minus V1. This is 167.69 minus 150. Minus 150. So this is equal to 17.69 ml, or you can write this 17.7 ml. So this was a very simple numerical. ठीक है. चलिए, let's move to next numerical. Calculate the number of molecules in a sample of an ideal gas whose volume is 0.45 liter. Temperature is 67 degrees Celsius and pressure is 0.76 bar pressure. What do we have to calculate? We have to calculate number of molecules of the ideal gas. Number of molecules of this gas we have to calculate. देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. नंबर ऑफ मोल्स अगर आप पता लगा लोगे, देन यू नो दैट 1 मोल ऑफ अ गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं. दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो उसको यूज करके हम जितने हमारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे यहाँ से, हम उससे हम क्या निकाल लेंगे कि इस गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. राइट. सो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज यहाँ पे कौन सी लगेगी, PV इज इक्वल टू nRT. सो n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू PV अपॉन RT. अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करो. दैट वॉज 67 डिग्री ना, तो 67 प्लस 273, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा 340 केल्विन. राइट. एंड आर क्या यूज करेंगे हम इसके अंदर, आर हम 0.83 यूज करेंगे. 0.083 ये वाला, बिकॉज आर 0.083 कॉरस्पॉन्ड करता है जब हमारा जो प्रेशर है वो बार में हो एंड वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में हो, देन वी यूज 0.083 वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, बिकॉज दैट इज बिकॉज इसके यूनिट्स उसमें क्या होते हैं, लीटर बार पर केल्विन पर मोल. ठीक है. सो इसमें हम आर की वैल्यू यूज करेंगे 0.083. सो प्रेशर इज व्हाट, 0.76 बार, वॉल्यूम इज 0.45, आर की वैल्यू यूज करी है हमने 0.083, टेम्परेचर इज 340. सो ये कैलकुलेशन पे आएगा 0.01121119. सो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 0.012119. अब हमें पता है कि अगर एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतने मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. राइट. सो इफ 1 mole of a gas contains 6.023 into 10⁻23 molecules, तो हमारे कितने आए हैं यहाँ पे, हमारे मॉलिक्यूल्स कितने आए, हाँ सॉरी, हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 0.12119. therefore 0.012119
moles of a gas will contain 6.023 into 10 raised to power 23 into 0.012119. So this value will be 7.29 into 10 raised to power 21 molecules. ठीक है, सो ये आ जाएगा इतने, आंसर आ जाएगा हमारा 7.29 इंटू 10 रेज टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो ऐसे आपको अलग अलग तरह के इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो ये आ सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके, एंड देन उसके बाद हम उससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे. सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The density of phosphine gas is 1.27 gram per decimeter cube at 50 degrees Celsius and 0.987 into 10 raised to power 5 Pascal pressure. Calculates its molar mass. Density of हमें क्या given है? Density of phosphine gas. Phosphine gas. What is phosphine gas? PH3 होती है phosphine. So this is given to be 127 gram per decimeter cube at temperature is equal to 50 degree Celsius, which is equal to 50 plus 273. This is equal to 323 Kelvin. And क्या बोला है हमें, और क्या दिया हमें? प्रेशर is equal to 0.987 into 10 raised to power 5 पास्कल. सो हमें क्या करना है? हमें निकालना है दी मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ दी फॉस्फीन गैस. तो ऑब्वियसली मोलर मास तो हमारा जो है ना वो यहीं से आएगा. हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, PV इज इक्वल टू NRT. यहाँ पे N क्या होता है? अमाउंट ऑफ गैस ओवर दिस, है ना, ये होता है. ठीक है, सो यहीं से हमारा आएगा ये. ठीक है, वो कैसे? अभी हमारे पास m की वैल्यू नहीं है, मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है. हम इसमें m की जगह डेंसिटी पुट करेंगे तो उससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा. बट उससे पहले बिकॉज प्रेशर पास्कल में है, डेंसिटी हमें दी है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, हमें पास्कल को तो पहली बात है हमें बार में चेंज करना पड़ेगा. एक काम तो हमें ये करना, मतलब हमें प्रेशर को बार में चेंज करना पड़ेगा. पर अब मैं आपको पहले यहाँ से समझाती हूँ कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो नाउ वी नो PV इज इक्वल टू M upon M RT. Now you also know mass upon volume is equal to density. हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है, हमें ये नहीं पता. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मास को M इज इक्वल टू लिख दूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. डेंसिटी को मैं नेक्स्ट टाइम रो लिखूंगी, इसका सिंबल डालूंगी. सो दैट मीन्स PV इज इक्वल टू M अपॉन MRT, और मैंने M को क्या लिखा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. सो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, PV इज इक्वल टू V इंटू दिस अपॉन MRT. इससे ये कट गया. ठीक है, सो यहाँ से M की वैल्यू क्या आ गई? मोलर मास की, ρRT अपॉन प्रेशर. राइट, अब ये आ गया ना, क्योंकि अब मेरे पास डेंसिटी है, R पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, तो अब मैं मोलर मास निकाल सकती हूँ. ठीक है, सो अगर आपको डेंसिटी गिवन हो तो पहले आप क्या करेंगे? मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख देंगे, बिकॉज इस केस में हमें वॉल्यूम भी पता नहीं है, तो वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो गया. सो अगर आपको डेंसिटी पता है, कन्वर्ट इट इनटू चेंज इट इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट इट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी जो आपको पता है. अब मैंने क्या बोला आपको? प्रेशर को हमें किसमें चेंज करना है? चेंज प्रेशर टू बार. पास्कल में है, इसको बार में चेंज कीजिए. वाई? बिकॉज डेंसिटी हमें किसमें गिवन है? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में. ठीक है, सो मुझे आर की वैल्यू वही लेनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी मुझे, जिसमें देखो हमारे पास आर की वैल्यूज क्या होती हैं? हमारे पास आर की वैल्यूज होती हैं लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में, देन ml ATM पर केल्विन पर मोल में, देन लीटर बार पर केल्विन पर मोल में. हमारे पास एक होती है डेसीमीटर क्यूब बार
पर केल्विन पर मोल में। आर की वैल्यू एक होती है 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार होता है पर केल्विन पर मोल। सो डेंसिटी क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में है तो प्रेशर को भी मुझे बार में चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं आर की ये वैल्यू यूज कर सकूंगी। ये आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट्स, इनके सबके यूनिट्स देखने पड़ते हैं हमें जब भी हमें आर की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, सो मैं प्रेशर को पहले बार में चेंज करती हूँ। वी नो दैट 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। सो मेरे पास क्या वैल्यू थी, 0.987 into 10⁵ Pascal will be equal to how much bar? 1/10⁵ into 0.987 into 10⁵. So that is equal to 0.987 bar. तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में। सो m इज इक्वल टू डेंसिटी है 127, r 0.83, टेम्परेचर वो हमने आया था 323, प्रेशर मैंने निकाला 0.987। सो यहाँ से मास आ जाएगा 34.624 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो दैट इज दी मोलर मास ऑफ फॉस्फीन गैस, जिसको हम 35 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 35, but 34.624 is also correct. So I think आपको ये you have got the understanding of this. So whenever you have been given density and you have to calculate molar mass, so first I mean mass per unit volume use करके density को यूज कीजिए मास की जगह, और फिर उसमें आप रिलेशनशिप निकालेंगे मोलर मास और बाकी सब क्वांटिटीज में। देन आपको लास्ट जो है चेक करना होता है कि जो आपका आर है, ठीक है, ये जो आपका आर है ये आपको कौन सा लेना है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको प्रेशर के यूनिट्स चेक करने पड़ते हैं, आपको डेंसिटी के यूनिट चेक करने पड़ते हैं। अगर आपके इसके यूनिट जो हैं प्रेशर के यूनिट, आई मीन दे नॉट अकॉर्डिंग टू द units that you had that are used in R, then what you will have to do, you have to change the units of pressure. तो वो जरूर ध्यान रखिएगा जब भी R की वैल्यू लेंगे कि you have to use the units अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ आर, और या फिर इनकी प्रेशर और इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम आर के यूनिट लेते हैं। तो दिस हैज टू बी टेकन इन माइंड, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये 4-5 यूनिट्स ही हैं, आई मीन 5 वैल्यूज हैं आर की, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम एंड प्रेशर के यूनिट्स। और वॉल्यूम के यूनिट्स पे ही डेंसिटी, मतलब जो डेंसिटी है ऑब्वियसली वो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है। सो डेंसिटी की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, मतलब मैं यूनिट्स की बात, मैं वॉल्यूम के यूनिट्स की बात कर रही हूँ, राइट। सो आपको डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू यूज यूनिट ऑफ, you'll have to change the units of pressure depending upon that। नहीं तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डेंसिटी के यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। आई मीन डेसीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपको प्रेशर किस में दिया है, पास्कल में दिया है आपको, तो आप उसको मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए आई प्रेफर टू चेंज प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड whenever doing these kind of numerical। ओके, चलिए, now the next numerical। okay, it says the density of oxygen gas is 1.43 gram per decimeter cube at STP। okay, determine its density at 17 degrees Celsius and 800 torr pressure। so see, it's a very simple numerical। आप again वही यूज करेंगे, आपको ये दी है, आपको इसमें डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस at 17 डिग्री सेल्सियस एंड 800 torr प्रेशर आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। PV is equal to nRT। now what is n? m upon m, I mean mass upon molar mass, and again mass is equal to volume into density। so volume into density upon m, राइट। सो यहाँ से वॉल्यूम कट गया, हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। सो ये रिलेशनशिप आ गया डेंसिटी का।
प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन गैस कांस्टेंट इंटू टी। नाउ और हमें भी क्या पता है, हमें टेम्परेचर, इसमें हमें प्रेशर पता है, दैट इज 800 टॉर। अब क्योंकि हमें आर यूज करना है गैस कांस्टेंट, तो टॉर में तो कहीं पे भी यूज नहीं होता प्रेशर गैस कांस्टेंट की वैल्यू के लिए। सो पहले क्या करो, चेंज दिस टू ATM में चेंज कर लो, ठीक है। और अभी यहाँ पे you know that 760 torr is equal to 1 ATM, therefore 800 torr is equal to 800 upon 760 ATM, that is equal to 1.052 ATM। प्रेशर की वैल्यू आ गई ATM में, ठीक है। मैंने प्रेशर निकाल लिया, मैं ये रिलेशनशिप फिर से लिख रही हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। now P I have changed to ATM and the value has come out to be 1.052 ATM। okay, now I have the value of molar mass of oxygen। what is it? ऑक्सीजन गैस का मोलर मास क्या होता है? 32। I have the value of temperature, that was how much? 17 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है ना। so 273 plus 17 which is equal to 290 Kelvin। now R की वैल्यू ATM में हम कौन सी यूज कर सकते हैं? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। करिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट सबकी, 1.052 इंटू 32 अपॉन 0.0821 into 290 and this will come out to be 1.4145 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सो ये आपकी डेंसिटी आ गई ऑफ, दैट इज therefore density of oxygen gas at 17 degree Celsius and 800 torr pressure has come out to be is equal to how much? 1.4145 ग्राम पर लीटर भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डेसीमीटर के ऊपर इसमें कुछ फर्क नहीं होता, यहाँ पे आप इसको पर लीटर भी ले सकते हो, ग्राम पर लीटर, ठीक है। सो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इन दिस केस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। सो ऐसे आपको डेंसिटी पे न्यूमेरिकल निकालने आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 34.05 ml of phosphorus vapor weigh 0.0625 gram at 546 degrees Celsius and 1 bar pressure। so volume of phosphorus vapors दिए हमें 34.05 ml, इनका मास दिया हमें 0.0625 ग्राम एट व्हाट टेम्परेचर? 546 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले मैं क्या करती होती हूँ ना, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेती होती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे टेम्परेचर की वैल्यूज जो हैं वो केल्विन में यूज करनी है, ठीक है। और क्या? एट व्हाट प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है। मुझे क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट, ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस निकालना है मुझे, 1 फॉस्फोरस निकालना है एक तो, एंड सेकंड है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। सो नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मैंने बोला कि फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म नॉट इन एटॉमिक फॉर्म, सो ये बोल रहे हैं कि फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं वो निकालो। सो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले तो मैं फॉस्फोरस का मोलर मास निकालूंगी, ठीक है, ये एटम्स तो बाद में आएंगे। सो ये निकालना है। सो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of phosphorus, molecular
मास ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, पहले ये निकालते हैं। चलिए, अगेन अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इंटू R अपॉन T। ठीक है जी, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई मोलर मास की MRT अपॉन PV। MRT और P एंड V इन सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, पर अगेन ध्यान रखना है हमें कि हमें प्रेशर किस यूनिट्स में लेना, डिपेंडिंग अपॉन R, हमें बिकॉज R की वैल्यू डिपेंड करेगी इस पे। सो इफ यू आर यूजिंग R, हमें क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है ml में। चलिए मैं एक बार फिर से इसको लिख लेती हूँ, इक्वेशन को जो मैंने निकाली है। मोलर मास इज इक्वल टू MRT अपॉन PV। मेरे पास मास गिवन है दैट इज 0.0625 ग्राम। चलिए, अच्छा आर मुझे निकालना है, टेम्परेचर आर मैं देखूंगी मैंने क्या लेना है। टेम्परेचर है 819 केल्विन, प्रेशर है मेरे पास 1 बार, और वॉल्यूम है मेरे पास 34.05 ml। अब मेरे पास वॉल्यूम ml में है, ml में कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या यूनिट्स होती है, मतलब क्या वैल्यू होती है आर की, जो जिसमें हमने ml में यूज किया हो। सो दैट इज 82.1। क्या होती है आर की वैल्यू, 82.1 ml ATM पर केल्विन पर मोल। सो जहां पे वॉल्यूम के यूनिट्स ml हो तो उसमें r की वैल्यू क्या होती है 82.1, एंड प्रेशर क्या यूज होता है उसमें ATM। मुझे प्रेशर क्या दिया हुआ है बार में, सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज प्रेशर टू ATM। नाउ 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। बात समझ आई? ऐसे हम चूज करते हैं अपने यूनिट्स को और आर की वैल्यू को। ठीक है, उस पे हम चेंज करते हैं यूनिट्स को प्रेशर के। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, m इज इक्वल टू ये वैल्यू थी 0.0625, दिस वैल्यू वाज 0.0, सो 0.0625 इंटू 82.1 इंटू टेम्परेचर है 819 अपॉन प्रेशर कितना है 0.987 ATM, वॉल्यूम इज 34.05। सो ये पूरा कैलकुलेट करने पे आएगा 125.07 ग्राम। So more mass of, this is the molecular mass of phosphorus. So ये आ गया इसका मोलर मास। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ number of atoms in one molecule of phosphorus. Now we know that the mass of one atom of phosphorus is how much? It is equal to 31 gram. So mass of one atom of phosphorus is 31 gram, ये हमें पता है, और molecular mass of phosphorus is this. That means if 31 gram is the mass of one atom of phosphorus, ठीक है, सो हमारा कितना आया मॉलिक्यूलर मास 125.07 ग्राम is the mass of how many atoms of phosphorus, 1/31 into 125.07, राइट। सो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आई मीन ये आ जाएगा 4.0 समथिंग आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इट विल कम आउट टू बी 4.013, दैट इज 4 एटम्स। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं ना, सो हम क्या लेंगे 4 एटम्स। सो दैट इज, so basically after calculating the molar mass of phosphorus, you know that mass of one atom of phosphorus is 31 grams. So if 31 gram is the mass of one atom of phosphorus, so this much gram, that is 1
125.07 ग्राम जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, 125.07 ग्राम इज द मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ फॉस्फोरस? 4 एटम्स. सो ऐसे आपको वेरियस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स निकालने आ सकते हैं. सो यू विल यूज द सेम मेथड, राइट? चलिए next numerical. A closed tank is first evacuated and then connected to a 50-liter cylinder containing compressed nitrogen gas. The gas pressure in the cylinder, originally at 20.5 bar, falls to 11.2 bar after it is connected to the evacuated tank. Calculate the volume of the tank. So क्या था? पहले एक टैंक था. सपोज ये एक टैंक है, ठीक है, इसको खाली कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, ठीक है. इसमें जो भी थी गैस क्या था वो सब हमने क्या किया, वो सब निकाल दी, इसको एम्प्टी कर दिया. इवैक्यूएट करने के बाद इवैक्यूएटेड टैंक, इसको एक सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया. सो मैं इसकी लिड लगा रही हूँ. उसके बाद इसको किससे कनेक्ट कर दिया? एक सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया. सो ऐसे कनेक्ट करेंगे सिलेंडर से. और इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है? इस सिलेंडर की कैपेसिटी है 50 लीटर. सो एक 50 लीटर के कैपेसिटी वाले सिलेंडर से इसको कनेक्ट कर दिया. अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर नाइट्रोजन गैस थी, कंप्रेस्ड होगी ऑब्वियसली, 50 लीटर में के अंदर थी, कैपेसिटी के अंदर. सो इसमें नाइट्रोजन गैस थी, ठीक है. अब जब नाइट्रोजन गैस इसके अंदर थी पहले, तो दैट वाज एट अ प्रेशर ऑफ P1 क्या था उसका? 20.5 बार, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली छोटी वॉल्यूम में थी. इट वाज इन अ स्मॉलर वॉल्यूम. बट जैसे इसको इससे कनेक्ट किया तो गैस एस्केप करेगी, इधर जाएगी, गैस को स्पेस मिल गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना गैस का. सो गैस इधर भागेगी. सो उससे क्या हुआ? गैस का प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड. प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड. ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर उसका फॉल होगा, रिड्यूस होगा. व्हाई? क्योंकि उसको ज्यादा वॉल्यूम मिल गई है अब एस्केप करने के लिए. विल बी रिड्यूस्ड. ये कितना हो गया रिड्यूस होके? P2 became, I mean next final pressure जो बाद में प्रेशर आया गैस का, that was 11.2 बार. ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज होगा बिकॉज गैस को ज्यादा स्पेस मिल गई. अब पहले गैस किस वॉल्यूम पे थी? 50 लीटर पे थी, ठीक है ना. ये हमने बोला 50 लीटर कैपेसिटी टैंक में थी. कैलकुलेट द, हमें इस टैंक की वॉल्यूम निकालनी है. वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक विच लेट अस सपोज इज व्हाट? इज V. हम मान लेते हैं, ठीक है. सो लेट the volume of the tank is equal to V लीटर, ठीक है. तो अब गैस का प्रेशर 11.2 बार कब हुआ? जब उसकी वॉल्यूम हुई, जब प्रेशर became 11.2 बार when the volume changed to 50 जो ओरिजिनल थी प्लस द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. यही हुआ ना. इसका प्रेशर 11.2 बार जब हुआ जब इसकी वॉल्यूम 50, उसकी खुद की सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस टैंक की वॉल्यूम, जब गैस को V वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल गई, सो तब इसका प्रेशर रिड्यूस हो गया टू 11.2 बार. सो हमारे पास P1 है, V1 है, P2 है, V2 है. सो अप्लाई व्हाट? अप्लाई बॉयल्स लॉ. यूज बॉयल्स लॉ. P1 V1 is equal to P2 V2. इनिशियली प्रेशर था 20.5, जब वॉल्यूम थी 50. अब प्रेशर क्या हो गया? 11.2, जब वॉल्यूम क्या हो गई? V प्लस 50. तो यहाँ से V निकाल लेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द टैंक. सो ये आ जाएगी V प्लस 50 इज इक्वल टू 20.5 इंटू 50 अपॉन 11.2 upon 11.2 which is equal to 91.51. so V plus 50 is equal to 91.51. so V यहाँ से आ जाएगा 41.5 liters, ठीक है. so volume of the tank आ गई 41.5
5 लीटर। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने यहाँ पे टैंक को बड़ा बना दिया है, जबकि टैंक जो है उसकी कैपेसिटी इससे कम आई, 50 लीटर था और ये 41.5 आया, बट एट दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि उसकी कैपेसिटी उससे कम आएगी। सो या बट मैंने आपको सिर्फ क्लैरिटी के लिए बनाया है, टू गिव यू मोर क्लैरिटी व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट. सो आई थिंक द न्यूमेरिकल इज मस्ट बी क्लियर टू यू. सो नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Calculate the temperature of 4 mole of a gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 bar R is given. अब ये तो बहुत सिंपल है, अगेन वही PV इज इक्वल टू nRT. इसमें सब कुछ गिवन है, हमें सिर्फ टेम्परेचर निकालना है. देखो हमें प्रेशर गिवन है 3.32 बार, हमें वॉल्यूम गिवन है दैट इज 5 डेसीमीटर क्यूब, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 4, इवन हमें इसमें तो इस केस में तो हमें आर भी गिवन है विच इज इक्वल टू 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल. तो आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर, दैट इज पीवी अपॉन एन आर. सो आप आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल कैलकुलेशंस हैं. 3.32 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 0.083. सो ये आपका आ जाएगा 50 केल्विन. जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा. सो ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था. आई शुड नॉट हैव टेकन दिस, बट चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बता दिया है कि ये ऐसे होगा. इट्स अ वेरी बेसिक वन. सो अब एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करते हैं. ओके, अ स्टूडेंट फॉरगॉट to add the reaction mixture to the round bottom flask at 27 degrees Celsius, but put it on the flame. After a lapse of time, he realized his mistake and found the temperature of the flask was 477 degrees Celsius. What fraction of air would have been expelled out? पहले तो मैं समझाती हूँ कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं. हुआ क्या, एक राउंड बॉटम फ्लास्क हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है. सो राउंड बॉटम फ्लास्क में एक बच्चे को, स्टूडेंट को कुछ रिएक्शन मिक्सचर डालना था. अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जब कुछ नहीं है, जब ये खाली है, तो इसमें क्या होगी, एयर होगी ऑब्वियसली, ठीक है. और ये बोल रहे हैं वो था 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. सो मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ कि ये व्हाट आर दे ट्राइंग टू से. ठीक है, ये वायर गेज होती है, तो ऐसे इसको रखा हुआ था ट्राइपॉड स्टैंड पे, ऐसे हम बर्नर के ऊपर रख देते हैं ना इसको, ठीक है. सो इसमें उसको डालना था रिएक्शन मिक्सचर, कोई रिएक्शन करने के लिए, और वो भूल गया. और ऑब्वियसली नीचे फ्लेम थी, ठीक है, नीचे फ्लेम थी. सो बिकॉज नीचे फ्लेम थी तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो हीट अप हो गया ये टेम्परेचर इसका, एंड इसके टेम्परेचर बढ़ गया. आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, एंड टेम्परेचर हैज बिकम 477 डिग्री सेल्सियस. ऑब्वियसली अभी भी उसमें एयर ही है, लेकिन ये जरूर है कि जब हमने उसको हीट हुआ, जब वो हीट अप हुआ, तो एयर कुछ बाहर गई होगी, ठीक है ना. तो कुछ एयर बाहर गई होगी, तो हमें यही निकालना है कि जब ये इतना हीट अप हो गया तो कितनी एयर एक्सपेल्ड हो गई, कितनी एयर बाहर गई, राइट. यही हमें निकालना है. अब मैं आपको पहले ही समझाती हूँ कि ये अगर सपोज ऐसे होता कि ये जो है फ्लास्क, ये बंद होता है इसका माउथ, ठीक है, इसका माउथ भी बंद होता. अब क्या होता है, जब इसका माउथ बंद होता है, इसमें क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है. सो 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी इन एयर मॉलिक्यूल्स की, जो भी एयर के पार्टिकल्स है, एयर के अंदर जो भी गैसेस है उनकी कुछ वॉल्यूम होगी. सो लेट अस सपोज वो x थी, ठीक है. लेट एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ एयर was how much, x. ऐसे मैंने मान लिया. अब इसको हीट हुआ, जब इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 47 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हीट होने पे ये पार्टिकल स्प्रेड आउट होंगे एयर के, और दूर जाएंगे, जितनी भी उसको स्पेस मिलेगी, जहां भी जा सकेंगे जाएंगे, तो वो बढ़ जाएगी ना वॉल्यूम एयर पार्टिकल्स की. सो सपोज अब वो हो गई
x प्लस वाई, मतलब y और इसमें एड ऑन, आई मीन उसकी वॉल्यूम बढ़ी ना हीट अप होने में, दो ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, फ्लास्क का मुंह कवर्ड नहीं है, माउथ इज ओपन, देयर इज नथिंग लाइक कॉक और समथिंग, नथिंग इज पुट, ये ओपन है, सो एयर ऑब्वियसली एक्सपेल कर रही है, इट इज गोइंग आउट, इट इज गोइंग आउट। बट ये भी तो बात है कि जब उसको हीट अप किया तो उसकी वॉल्यूम बड़ी होगी ना, x प्लस वाई होगी। सो लेट at temperature 477 degree Celsius, volume of air become x plus y, बढ़ेगी ना, हायर टेम्परेचर है, बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम विल, मैं इसको पीछे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बिकॉज इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो मेरा कहने का मतलब है वॉल्यूम अप होगी, बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ना। सो मैंने तभी x प्लस वाई, ऐसे मैंने रैंडम वैल्यू ले ली कि x प्लस वाई होगी। हमें क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड। सो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड मतलब व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी दैट इज एट 477 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर that is at 27 degrees Celsius divided by final volume of air, that is known as the fraction of, that is the fraction of air expelled. So मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ इसको, इस पर्टिकुलर स्पेस में मैं यहाँ लिख देती हूँ, so fraction of air expelled will be equal to final volume of air minus initial volume of air upon final volume of air. So final volume of air कब, 477 डिग्री सेल्सियस पे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर कब, 27 डिग्री सेल्सियस पे। सो फाइनल वॉल्यूम कितनी मैंने बोली है, x प्लस वाई, एंड ये कितनी है, x। अब ना मुझे x पता है ना मुझे y पता है, लेकिन मुझे दोनों टेम्परेचर्स पता है, मुझे T1 पता है, T2 पता है। सो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि I know that, okay, I know that V1 is equal to x when temperature was 27 degrees Celsius, right? So when the temperature was 27 degrees Celsius, the volume was, मैंने x मानी थी, ठीक है, then when my volume became x plus y, what was the temperature, that was 477 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें मुझे पता है। अब पहले मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन, और ये मेरे पास आ जाएगा 273 प्लस 477, दिस इज इक्वल टू 750 केल्विन, 750 सॉरी केल्विन, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दैट इज V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, right? So this implies volume, जब x थी तो टेम्परेचर क्या था, 300 केल्विन, जब वॉल्यूम x प्लस वाई हो गई तो टेम्परेचर क्या है, 750, ठीक है। यहां से x प्लस वाई अपॉन x इज इक्वल टू 750, ये मैं आगे लिख रही हूँ, अपॉन 300, so this ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5/2, so this implies x plus y upon x is equal to 5/2। अब यहां से मैं क्या करने वाली हूं, मैं y को इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट कर रही हूं, कैलकुलेट y इन टर्म्स ऑफ x, हाउ कम, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 5/2, दिस implies 1 plus y upon x is equal to 5/2, this implies
y अपॉन x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1. सो यहाँ से therefore आ जाएगा y अपॉन x, just a second, therefore y upon x is equal to 3/2. This implies y is equal to 3/2x. अब y आ गया मेरे पास 3/2x. और what was फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, हमने क्या बोला था? फ्रैक्शन ऑफ एयर, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम क्या थी? फाइनल वॉल्यूम वाज x प्लस y. जस्ट अ सेकेंड, ये पीछे चलते हैं हम पहले. फाइनल वॉल्यूम वाज x प्लस, ये थी ना मेरी फाइनल वॉल्यूम x प्लस y. यहां से देखो x प्लस y. सो x प्लस y माइनस इनिशियल वॉल्यूम ओवर x प्लस y. यहां से मैं क्या कर रही हूँ, y की जगह आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 3/2x माइनस x अपॉन x प्लस 3/2x. सो ये आएगा कैलकुलेट करके 5/2x माइनस x अपॉन 5/2. ओ आई हैव हार्डली एनी स्पेस लेफ्ट, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ. सो ये आ जाएगा 5/2x माइनस x अपॉन 5/2x. दिस विल कम आउट टू बी 3x/2 अपॉन 5x/2. x से x 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 3/5. सो ये आएगा हमारा फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड. दिस इज इक्वल टू 3/5. सो fraction of air expelled came out to be 3/5. okay, so this is equal to 3/5. चलिए, so I think we are done with all the kinds of numericals. अब मैं आई थिंक इसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराना चाह रही हूँ. जस्ट अ सेकेंड, one variety of numerical is left, so that is the last one. yes, एक न्यूमेरिकल रहता है, मैं ये भी करा देती हूँ. that is 2.9 gram of a gas at 95 degrees Celsius occupies the same volume as 0.184 gram of hydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure. Calculate the molar mass of the gas. So हमें पता नहीं कोई एक गैस है जिसका मास इज इक्वल टू, जिस गैस का मास इज इक्वल टू 2.9 ग्राम at what temperature? 95 डिग्री सेल्सियस. ये कह रहे हैं it occupies the same volume as the mass of hydrogen gas which is equal to 0.184 gram at temperature 17 degree Celsius at the same pressure. So basically इन दोनों गैसेस का प्रेशर भी सेम है. if it is V, suppose volume V1 is equal to V, let, हम इसको V1 मान लेते हैं. ठीक है, सो इसका प्रेशर इज इक्वल टू P, let. सो बेसिकली इन दोनों गैसेस का, जो ये जो भी गैस है इसका और हाइड्रोजन गैस जिसका वेट इतना है जो इस टेम्परेचर पे है, इन दोनों की वॉल्यूम और प्रेशर सेम है. सो इसकी वॉल्यूम भी कितनी है? V है. इसका प्रेशर भी कितना है? P है. सो व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? चलिए हमें कहा है मोलर मास ऑफ दिस गैस निकालने के लिए. सो बेसिकली हमें m ऑफ द गैस निकालना है, अबव गैस निकालना है, मोलर मास ऑफ द गैस निकालना है हमें. ठीक है, हाइड्रोजन गैस का तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन हमें पता है इसका मोलर मास क्या होता है, लेकिन हमें किसका निकालना है? हमें इस गैस का निकालना है. अब हम ये कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए हम अगेन वी विल अप्लाई PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, अब यहाँ पे for the gas, for the given gas,
प्रेशर इज व्हाट, P, मैंने ऐसे जूम किया है, ठीक है। वॉल्यूम इज व्हाट, प्रेशर इज व्हाट, P, जस्ट प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V, ठीक है। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स यूज करने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता नहीं है, लेकिन हमें मास पता है, तो उसको मैं ऐसे लेती हूँ m अपॉन molar mass into RT. So basically for the given gas this is equal to कितना दिए 2.9, ये क्या है मुझे निकालना है। R अभी मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। टेम्परेचर कितना है 95 प्लस 273, ठीक है। ये हो गया फॉर द गिवन गैस। पीवी की वैल्यू क्या आ गई ये, सो पीवी इज इक्वल टू 2.9 R अपॉन M into 95 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 368 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। अब मैं करती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन लगाती हूँ हाइड्रोजन गैस के लिए। So for hydrogen gas, again PV is equal to nRT. This is equal to M upon mRT, ठीक है। सो इसका कितना मास दिया हाइड्रोजन गैस का, दैट इज 0.184। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या होता है 2 m, दैट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज इक्वल टू 2, ये तो हमें पता है। आर मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, अभी नहीं यूज करती। टेम्परेचर क्या दिया है हाइड्रोजन गैस का 17 डिग्री सेल्सियस, सो 273 प्लस 17, सो यहाँ से आ गया PV इज इक्वल टू 0.184 अपॉन 2 R इंटू 290, इसको मैं लिख लेती हूँ 2। अब हमें पता है ना कि इन दोनों गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, हाइड्रोजन गैस का भी और इसका भी। सो यहाँ से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर सेम फॉर बोथ द गैसेस, बिकॉज P and V are same for both gases, therefore 1 is equal to 2, equation 1 is equal to 2। so PV तो सेम है, तो मैं राइट साइड की इक्वेशन इक्वेट कर रही हूँ, यानी कि 2.9 R अपॉन M, सो 2.9 R अपॉन M इंटू क्या था यहाँ पे 368 था ना, 368 इज इक्वल टू 0.184 अपॉन 2 इंटू R इंटू 290, यहाँ से R से R कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है M की वैल्यू। सो M, just a second, so M is equal to 2.9 into 368 into 2 upon 0.184 into 290, ये कट के आएगा 145, और यहाँ से m की वैल्यू जब आप करोगे ना इसको पूरे को सॉल्व, आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ऑब्वियसली मोलर मास है तो ग्राम पर मोल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इस पर्टिकुलर गैस के मास के लिए दूसरी गैस जो हमें दी होगी उसका भी मास दिया होगा, पर वो गैस दी होगी, उनके प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है। जैसे इन्होंने क्या कहा था 2.9 ग्राम ऑफ अ गैस at 95 degrees Celsius occupies the same volume as 0.184 gram of hydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure। so basically दोनों गैसेस का प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है। सो आइडियल गैस इक्वेशन लगा के इक्वेट कर दो, जो दूसरी गैस दी है उसका मोलर मास हमें पता होगा, उसका नाम दिया है तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वॉट एवर इट इज, एंड पहले वाली का हम इक्वेट करके निकाल सकते हैं। सिम देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ द सेम टाइप आई एम गिविंग हियर, यू नीड टू सॉल्व इट योरसेल्फ। सो मैं बता रही हूँ उसमें क्या दिया है, सेम ही है। सो दैट इज 3.7 ग्राम ऑफ अ गैस at 25 degrees centigrade occupies the same volume as 0.184 gram of hydrogen gas at 17 degrees Celsius and at the same pressure। what is the molar mass of the gas? so इसमें भी हाइड्रोजन गैस दी है, प्रेशर वॉल्यूम सेम है,
और दूसरी गैस और इस हाइड्रोजन गैस का, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले किया, इक्वेट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन दी होगी तो उसका मोलर मास यूज कीजिए एंड दूसरी गैस का मोलर मास निकाल लीजिए, राइट। सो this is, I mean, there have been enough numericals of this type now, जो हमने अभी आइडियल गैस इक्वेशन पे कर लिए हैं, जिसमें हमने PV is equal to nRT स्पेसिफिकली इस टाइप में यूज किया है, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज किया है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस करवाए थे मोर ऑफ दी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 के टाइप्स के, जिसमें मैंने वो इक्वेशन यूज की थी, दोस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स वी did. So I think you might have got enough clarity on this topic. So my next video again will be on the same states of matter, but अब हम कुछ numericals next type में करेंगे जिसमें कुछ chemical equation तो थोड़ा mole concept और आएगा, यूज होगा। तो थोड़े हम अगर आप अपना मेरा next video देखेंगे तो in that you will get more clarity on mole concept as well. states of matter के साथ वो भी clarity आपको आ जाएगी। So do go through my next video as soon as it is uploaded. So but before that मेरा ये वाला पूरा वीडियो देखिए, समझिए, and in case if you have a doubt you can ask me in the comment section. Okay,